webinar. I don't know ये तेरा नाम बड़ा मुझे sorry my person seminar, but Okay. I always thought कि तू मेरे seminar का member है, but I know you No, aren't. actually, sir, I wanted to join your architecture course. मैं हाँ, अभी ज्वाइन करने ही वाला था मतलब, बट आई थॉट मे बी एक मंथ का टाइम देता हूँ फिर ज्वाइन करता हूँ ठीक अगले अगले से आर्किटेक्चर कोर्स से। ठीक है नहीं नहीं perfect और बताओ क्या चल रहा है? How is everything in Pune? How is everything? एवरीथिंग्स गुड। मैं तो ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ सर अभी। अच्छा, हाँ। तो what got you started into stock market? How did you start? फ्रॉम आई एम इन स्टॉक मार्केट फ्रॉम लास्ट 1 year। अच्छा, since COVID basically. सो मैंने ऐसे, हाँ या तो कोविड से थोड़ा, अच्छा, हाँ, तो फिर मैंने वो पोस्ट वगैरह देखा था एंड आई गॉट इंट्रिग्ड विद द फैक्ट दैट यू कैन अर्न मनी, so much money. But then I started learning about things on in stock market. I was fascinated. But धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी साइकोलॉजी थी ना वो बिगड़ती गई सर। ठीक है। अब मुझे एंड हाँ, बोलो प्लीज। एंड देन आई स्टार्टेड विद ओनली वन लॉट अभी से। तो अभी से मैं कंसिस्टेंट हो रहा हूँ थोड़ी धीरे धीरे, बट फिर भी मुझे प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं थोड़े बहुत। ठीक है। सो मुझे पहले ये बता कि you said you have been in the market for 1 year and I have been seeing your performance. You are now trading in the derivative segment, options ज्यादा अपने। या पहले ये बता कि in the last 1 year जो तेरा performance था, has हाँ। it improved or has it deteriorated? ये पहले No, बता। no, no, no. It has improved. It has improved. Yeah. That is It has significantly improved. okay. I can अब assure. And the from joined you significantly improved, sir. I'm से यार आवाज ना honestly. कट हो रहा है यार, it's getting cut. I'm not able to hear. दोबारा बोलना है। 1 second. Now it is fine. Okay. Yeah. From the day I joined you, that it has drastically improved. चलो Honestly. ठीक है कोई बात नहीं, इट इज ऑल योर एफर्ट, मेरा इसमें कुछ नहीं है। आई जस्ट गिव यू डायरेक्शन एंड शो यू द पाथ एंड यू आर द वन हु टेक्स द रिस्क, सो ऑलवेज रिमेंबर Yeah. यू आर द वन टेकिंग द एफर्ट, सो ऑल द ओनस इज ऑन यू नॉट ऑन मी। अब मुझे ये बता कि अभिषेक, व्हाट इज द कैपिटल दैट यू आर यूजिंग नाउ? आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गाइड यू accordingly. Yeah. 20,000. 20,000. 20,000. Okay, what are you doing otherwise other than trading? Other than trading, I'm a student and I nothing else. Maybe no side hustle as of now. How old are you right now? 21. You just got out of college Yeah. Just and now you are looking for a job somewhere, or are you studying further on from here? no, actually, I want to do an MBA, so I am doing classes here in Pune. Acha. Yeah. So So no, I'm side by side also looking for a job. now tell me one more So thing, okay. because I will be able to link everything, the problems before you tell me. Now tell me, let us say tomorrow you take a trade and that Yeah. 20,000 capital that you have goes away. Now what will you do? Will will you be able to get that money back from somewhere or from your Yeah. family or Hanji? I can. Your I matlab, can get that money. But I can manage to get like 1 lakh rupees right now, matlab, from my parents for trading. they are supportive. That's what I want to know. They are supportive. So Yeah. one thing which I want to, start off with is that since I've never interacted with you on one-on-one, is that I Okay. want you to share something, share every day's journey or every week's journey with someone in your family. It could be your Okay. sibling, it could be your mother, father, whatever it is. But Okay. this is a very lonely journey, and I want you to be able to talk to someone so that they know the Okay. entire picture going forward. The reason I say that is, number one, you will feel lighter even when you are having bad days. Number two, when you are getting out of fuel, they will know that I have to give you fuel. Okay. I always believe that if you don't have, if I want to drive my car from Amritsar to Pune, I cannot drive in one single shot. I'll have to keep on fueling it at the petrol stations. Same thing is with the trading. If you want to be from 1 year experience to a 10-year experience guy, and you want to be fully involved in the markets, you will have to keep on fueling yourself. And I always say this to people:
people spend massive amounts of money when they go to foreign to study, or forget foreign, look at Indian institutions, private institutions, you Yeah, spend yeah, a lot yeah, of money right. there. So what you are spending in the market has to be considered as tuition, has to be considered as education fees, and you have to pay it to learn. And I believe if you don't pay in the early years, you will never learn. That is what I believe. So my advice to everyone is always make a loss first with a small capital, understand the mistakes and then bounce back. So ये तो ठीक है बात. अब मुझे ये बात बता, what are you still fearful? Are you still fearful? या काइंड ऑफ अभी आज क्या हुआ सर, आज मैंने दो तीन गलतियां की कि आई वेंट अपोजिट द ट्रेन. Okay. मतलब बहुत बार मेरे साथ यही होता है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आई फाइंड सपोज टू बाय, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है आई फाइंड रेजिस्टेंस टू सेल. आई डोंट नो व्हाई बट दैट फैक्ट हैज जस्ट bothering me. This is the first I problem that Yeah, you yeah, have I just. know I don't have to do that, but I end up doing it. So basically what you are doing is what you've learned कि यार support आएगा तो buy है, resistance में हमने हाँ short हाँ. करना है, right? ये Yeah, तो yeah. so your हाँ. trading style is basically, you know, in our language what we call mean reversion. Search about this. Okay. इसके बारे में सर्च करना, mean reversion. ठीक है? Okay. This is what एक होता है ट्रेंड फॉलोइंग, कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, जैसे आजकल एक चल रहा है हाँ अपवर्ड टाइम साइड छोटा ट्रेंड चल रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हाँ हैं. एक होता है मीन रिवर्जन, कि आप उल्टा हाँ. ट्रेंड ले रहे हो, कि यार मार्केट Yeah, थोड़ा yeah. ऊपर चला गया, हम वहां पे सेल करते हैं कि मार्केट वापस एक मीन पे आ जाए, वहां पे फिर खरीद लेंगे. तो वो होता है मीन रिवर्जन. ठीक है, तेरा वो हाँ. स्टाइल, ये समझ गया. और बता तेरे प्रॉब्लम्स क्या है, मैं देन एक ही बार एड्रेस करता हूँ. और मतलब एक्चुअली आई हैव सेट अ लिमिट फॉर माई सेल्फ कि मैं इतना ही लॉस लूंगा. But there comes a point when I take more trades which end up me making more huge losses. एक्चुअली वो भी लिमिट हो गया है, पर वो अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं एक एक्स्ट्रा ट्रेड लूंगा तो मैं ये भी लॉसेस रिकवर कर लूंगा मेरे, वो ओके, लॉस बढ़ते जाते हैं. ठीक है. और बता, और क्या इश्यूज है? और मतलब एनालिसिस एनालिसिस आई कैन डू एनालिसिस राइट, बट मेरी कब कब ट्रेड 1:4 1:3 भी जाती है, 1:5 भी जाती है, बट मेरी ग्रिड की वजह से आई लूज एवरीथिंग. मतलब आई हैव टू टेक द एसएल ऑन दैट ट्रेड, ऐसा हो जाता है. अंडरस्टूड. और बता, Yeah. और कोई प्रॉब्लम? और मतलब तो वो तो हो गया सर. अभी फिर ओवर ट्रेडिंग का तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एक्चुअली मैं जब भी ट्रेड में घुस जाता हूँ ना, तो आई गेट दैट फीलिंग दैट आई शुड एग्जिट दिस बिकॉज इट विल गो अगेंस्ट मी. एंड व्हेन आई एग्जिट दैट ट्रेड इट गोज इन माय फेवर, एंड आई एंड अप टेकिंग रॉन्ग ट्रेड्स आफ्टर दैट, कि उसी डायरेक्शन में रॉन्ग ट्रेड ले लेता हूँ मैं सर, मैं बीच में ही घुस जाता हूँ. And when you give us those levels now that you shouldn't trade in between this or you should only scalp in between this, I trade for मतलब yeah, बीच में trade लेता हूँ when there is confusion and I hold it forever, like I hold it for 2 or 3 hours, that hoping that it will go in my side. And I end up shifting sometimes I end up shifting the SLs also. समझ गया. मैं देखो ना तेरी प्रॉब्लम्स कुछ चार्ट्स पे दिखाता हूँ, what you are facing, and Okay. I will try to explain it, and I hope Okay. you, after this meeting that we're having, you will be able to benefit and improve from tomorrow. Yeah. Yeah, sir. Firstly, एक मुझे और चीज बता, because I'm not satisfied. अगर तू कमा रहा होता पैसे, if you were earning right हाँ. now, would your trading have become easier? तेरे मन में ऐसा तो नहीं होता कि यार अगर मेरे 20,000 का लॉस हो जाएगा, मेरे को अपने फैमिली से लेना पड़ेगा. तो एक ये होता है. दूसरा है कि अगर तू ऑलरेडी कमा रहा होता पैसे, you were doing something, हाँ. and then तब हाँ. तू हाँ. लॉस करता, do you think you would have become more aggressive or more fearless if you were earning yourself, because you would have easily able to transfer money from your own Yeah. account? Yeah. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. this is one advice I Definitely. want to give you now. Okay. मैंने पीछे किसी और से भी बात कर रहा था. अभी तेरी प्रॉब्लम आ रही है कि यू आर लिटिल अंडर कैपिटलाइज्ड, एंड तू Yeah. सोचता है कि मैं 20 का, व्हाट इज योर एवरेज वैसे प्रॉफिट इन अ डे और लॉस इन अ डे, कितना तेरा जाता है? लॉस मेरा 1.5 तक जाता है सर. ठीक है, 1.5 और 1, और प्रॉफिट आई कैन मेक 2 to 2.5. मुझे वो बता जो तू कंफर्टेबली कर सकता है, नॉट तू वन डे बनाता है, कंफर्टेबली आंखें बंद नहीं करे कंफर्ट कमा सकता है. मैं 1,500 तो बना सकता हूँ सर इजीली. या या ठीक है, अच्छा है. 5-10% बेसिकली तू कह रहा है अपने कैपिटल के, बहुत बड़ी बात है. इट्स नॉट इजी टू अर्न दैट. मेरा एक सजेशन है तेरे को, अदर देन ट्रेडिंग.
हाँ आई नो अ ओके लॉट ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है, मैं तेरे को एक सिंपल बात बताता हूँ। ओके जितने भी है ना, जो इनको तू फॉलो करता है ऑन जो टीवी पे आते हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, देन दे स्टार्ट टू गो इन ओके इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बिकम एंट्री ऑफ द प्रोप्राइटरी डेस्क, वहां से ग्रो करते हैं, हैंडलिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। जितने भी ट्रेडर है ना अच्छे, कभी मैं इंटरव्यू सुनना, ओके मैं तेरे को फॉरवर्ड करूंगा, वो सब लोग ना एक चीज कहते हैं ओके कि यार एक साइड असल रखो इन दी स्टार्टिंग ईयर्स दैट यू आर हैविंग इन दिस मार्केट। यू नो वेरी वेल कि मार्केट विल ओके बी क्रूअल टू यू, ओके you know very well that I have to pay some ओके fees, and it is impossible that I pay only 5,000 and then I make lakhs and lakhs of money from that. What I am saying is you have to have something for the next 1-2 years to fuel yourself for increasing your performance. And once you know that you become stable in the market, you can always cut out that extra hustle and focus entirely in your energy on trading. These hustle I'm talking about doesn't mean a job specifically, that तूने कहीं job करना है in a big company, doesn't mean necessarily you have to do an internship. All I'm saying is anything that you're passionate about. So for example, you like photography, you could do some photography course and sell it on Instagram. If you like baking cakes, you can sure sell cakes to your friends and family and your colleagues. If you like something like marketing or जो engineering में है, you know how softwares work, marketing ऐसे होता है, you can do social yeah media marketing. See, there are tons of things available now over digital lines. What I am saying is, if you can manage कि यार मैं 10-15 हज़ार एक महीने में कहीं एक साइड इनकम कमा लेता हूँ, so I believe that can be very big push in your trading journey. Because तेरे को तब पता होगा कि if I'm going wrong also, मेरे पास एक साइड हसल है जो मेरे को in my initial years बचा लेगा. हमने उसको हैबिट नहीं बनाना कि वो इनकम चलते रहे और उसके हम ऊपर डिपेंड करें. हम सिर्फ उसको फ्यूल के लिए रख रहे हैं जब तक मैं धक्के खाता हूं. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टू डिस्कवर योरसेल्फ एंड योर सिस्टम एंड योर स्टाइल, यू कैन ऑलवेज कट दैट सोर्स आउट एंड देन परस्यू योर ट्रेडिंग फुल टाइम. समझ okay रही बात को? दिस विल yeah yeah ऑल्सो yeah लेस प्रेशर ऑन योर फैमिली, प्लस लेस प्रेशर ऑन यू टू आस्क योर फैमिली फॉर मनी अगेन एंड अगेन. ये एक सजेशन देखो दूंगा, ठीक है. Secondly, I would like to go on the charts and I would like to discuss your problems one by one. अभी तक तू मुझे बता क्या कह रहा है? What chart do you trade on? Just for the sake of it, what nifty chart? nifty only nifty Any only nifty chart? Which chart? Time frame? time frame I trade on 50 minute on 5 minutes sir. अब मैं देखो तेरा yeah गलती बताता हूँ. ये मैं 5 मिनट चार्ट पे जा रहा हूँ. निफ्टी एंड आई लाइक व्हाट यू डूइंग कि मैं सिर्फ निफ्टी करूंगा. सो यू इवन ज्ञान talked about these things. Gyan also said if I do soybean, I will only do soybean trading. If I do wheat, I will only do wheat trading. Same thing. okay If you focus on one thing ना, you understand all the patterns कि यार ये तो ऐसे करेगा ही करेगा, तेरे को पता चल जाएगा. It is good. okay So master Nifty first, then come to bank Nifty, then come to something else. Great. Now the problem is this: when you go on a smaller chart, you will find hundreds of supports. ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये लेवल भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट था, मे बी ये रेजिस्टेंस है. तेरे को हर जगह कोई लेवल दिखेगा. ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है. बट right 5 मिनट के जो सपोर्ट्स है ना, उनका मीनिंग नहीं होता. तेरा okay काम है कि एक बड़े चार्ट का सपोर्ट निकालना शुरू कर दे. 1 hour chart, 1 day chart. So very simple. If I go on a 1 hour chart, you can clearly see that the most important support or resistance is 17,200 or yeah right 17,100, or it can be 16,900. But it is not 17,000. It is, or maybe 17. That is fine. So every 100 point पे एक support आ रहा है. But it is not कि हर candle का support है. अगर तू 5 मिनट में जाएगा on the chart of 5 minute of Nifty, you will be able to see 17,020 भी resistance था, 1750 भी था, 1775 भी था, 171 भी था. तो जो तेरा सपोर्ट एक्चुअली एक ही है, वो तेरे 10 बन के जोड़े चार्ट के ऊपर. एक चीज को याद रखना कि जब तू एक बड़े चार्ट पे ट्रेड करता है, तो उस चार्ट के ऊपर उस कैंडल में एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी बल्क डील, एवरी ब्लॉक डील इज विद इन दैट कैंडल. बट अगर तू एक 5 मिनट कैंडल ट्रेड करता है रादर देन अ 1 hour कैंडल, you maybe at this point of time Devang didn't trade, सिर्फ तूने ट्रेड किया था. Maybe Devang trades over here on the short side, you don't know. Maybe right Morgan okay Stanley has bought over here, but maybe Goldman Sachs bought over here, you don't know. So if you go on a bigger chart, every market participant is on that candle, so it gives much more meaningful information. ये एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है तेरे को, तू जो मुझे कह रहा था कि मैं एक सपोर्ट में जो तू प्रैक्टिस कर रहा है स्टाइल, वो तेरा ये स्टाइल है कि इफ द मार्केट, ये एक रेजिस्टेंस है, ये मैंने एक सपोर्ट एस्टैब्लिश किया, सो एवरी डे यू आर डूइंग दिस कि मार्केट का ये सपोर्ट है,
ये रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट यहाँ पे आया मैं बाय करूंगा, यहाँ पे आया तो मैं सेल करूंगा, अदरवाइज ये टूटा तो मैं बाय करूंगा, ये तो गया तो मैं सेल करूंगा। ऐसा नहीं। इट इज ऑल्सो वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट, अगर तू निफ्टी ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ निफ्टी इज ओपनिंग, हाउ निफ्टी इज क्लोजिंग, all those things are also important. How much time is Nifty spending at this point of time? How much time is Nifty spending at this point of time? I will give you an example. And secondly, also having an understanding of what is the position of the market. That is also very important. मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बातें सबको मैं कंबाइन कर रहा हूँ। पोजीशन ऑफ द मार्केट का मतलब कि यार तू एक अप ट्रेंड में बैठा है, तू एक डाउन ट्रेंड में बैठा है, कि तू एक साइडवेज मार्केट में बैठा है। तू आजकल इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, and intraday trading you can clearly see that the market is doing comfortably well. So in the very short term you are doing well, maybe in the long term some pressure is still there, but once you start to close above 17,200 you are starting to see some good things in the market. So how do I plan the market? I will do this. हमने कुछ दिनों पहले ऐसे डिस्कस किया था कि 17,200 एक सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब भी मार्केट यहां पे आता है मोर ऑफ्टन देन नॉट बाउंस कर जाता है, और अगर मार्केट 17,200 के नीचे चले जाता है देन द मार्केट इज बिकमिंग वीक। हमने एक व्यू बना लिया, तो तूने भी एक ये काम करना है यार, तूने एक मार्केट को देख के एक व्यू बनाना है। जैसे मैंने कुछ डेज पहले आपको दिया था कि 16,900 पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो अगर तो मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, व्हाई शुड आई लुक फॉर एनी एग्रेसिव अपॉर्चुनिटीज ऑन द शॉर्ट साइड? So I should use every dip I am getting in the market towards 16,900 to go long. At the same time, if the market is coming here, consolidating here and then breaking this, then I can go short. But if the market is holding 16,900, there is no reason for me to look for any aggressive trades. गलती जो तू कर रहा है वो क्या है? होप ट्रेडिंग। मतलब कि यार मार्केट जैसे ये एक कोई रेजिस्टेंस है, मार्केट एकदम से यहां से ऊपर आ गया, मैंने यहां पे शॉर्ट कर रहे हैं, बट क्या पता मार्केट यहां पे जब आए थोड़ा अगर टाइम स्पेंड करना शुरू कर जाए और ये तोड़ दे ऊपर को। सो एक तो एक चीज याद रखनी इन योर मीन रिवर्जन ट्रेडिंग दैट यू आर डूइंग, अगर तू एक रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर रहा है वो तभी कर अगर मार्केट थोड़ी बेरिश है, जब तेरा स्ट्रेटजी है सेल ऑन राइज। बट अगर तेरे को दिख रहा है इन द लास्ट फ्यू डेज अमेरिका बुलिश है, इन द लास्ट फ्यू डेज मार्केट में कोई भी डिप आता है इट गेट्स बॉट इनटू, तो तेरा भी काम बाय ऑन डिप होना चाहिए, रादर देन नॉट होपिंग कि यार एक महीने पहले तो 2 बजे मार्केट बिकती थी, आज भी बिकेगी। आज क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखो, आज पूरी कैंडल नीचे करी, ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि मार्केट 16,900 के ऊपर घूम रहा है एंड मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो अभी कंफर्टेबल है। बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो तेरे को एक्चुअली सर I traded that candle today and वो नीचे गया फिर ऊपर आके मेरा पूरा प्रॉफिट खा गया सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, तू शॉर्ट क्यों कर रहा है? तू शॉर्ट इसीलिए कर रहा है बिकॉज तेरे को मार्केट एक्सपेंसिव लग रही है। नंबर 2, तूने लॉन्ग की एंट्रियां जब हमने जैसे ली थी तूने वो मिस कर दी होंगी, और अब तेरे मन में आ रहा है कि पहले मैं शॉर्ट काटूं और जब फिर मार्केट नीचे आएगा फिर मैं दिमाग के साथ फिर लॉन्ग लूंगा। तेरे मन में कहीं ना कहीं बात चल रही होगी, मैं तेरे को दावे से कहता हूं। यस सर, यस सर। तो बात वही है ना, जब तेरे मन में बात आ गई है कि यार मार्केट यहाँ एक्सपेंसिव है, तेरे मन में ये बात नहीं आ रही है कि मार्केट एक्सपेंसिव है यहाँ से और ऊपर जाएगी, बट तेरे मन में बात ये आ रही है कि मार्केट एक्सपेंसिव है तो मेरे को यहाँ सौदा अपना काटना है, लेट द मार्केट कम डाउन, जब चीप होगा तो मैं खरीदूंगा। एक मेरी बात याद रखना, अगर एक मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, ये लेवल था 17,900, ये याद रखना, अगर ये लेवल होल्ड कर रहा था तब तक मार्केट थोड़ी बेयरिश थी और तेरा जो सेल ऑन राइज था वो चलेगा। हमने फिर सपोर्ट बाय नहीं करना, हमने सिर्फ रेजिस्टेंस से माल बेचना है। बट अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया और तेरे को पता है कि अगर ये कट ऑफ लेवल मार्केट को ब्रेक कर रहा है, यू नो दैट अ स्ट्रक्चर इज चेंजिंग, अ डबल बॉटम इज बीइंग फॉर्म्ड इन दिस मार्केट, तब होता क्या है, मार्केट ऊपर जाता है, तू यहां बेचता है। क्यों बेचता है? बिकॉज तूने यहां खरीदा नहीं था। जब मार्केट यहां आता है, यू मेक मनी, इट अगेन गोज अप, इट अगेन गोज अप, गिव्स यू अ लॉस, you will cut your loss over here, but जब मार्केट यहां पे आएगी you can still not go long because it is again expensive for you कि अब तो तूने मिस कर दिया। now it will dawn to you कि यार अभिषेक मार्केट तो यहां से यहां आ गई है, इतना बढ़ गई है, अब तुझे गिरना ही पड़ेगा। you see a shooting star again on the charts, again you go short, market comes down, retraces 33%, again goes up, hits your SL, and you will keep on doing this till your account gets blown.
And there is only one fundamental problem, that you didn't understand that the market structure changed. बात समझ रहे? Yes, yes, अगर तूने 5 मिनट ट्रेडिंग करनी है अभिषेक, मुझे प्रॉब्लम नहीं yes. है, बट तू वो 5 मिनट ट्रेडिंग तब कर अगर तू मार्केट के साथ चलना चाहता है. तो अगर तूने एक एस्टैब्लिश किया है कि यार मार्केट में, आई गिव यू बैंक निफ्टी एग्जांपल, मैं थोड़ा नया एग्जांपल देता हूं. ये बैंक निफ्टी का 1 आवर चार्ट है. आई एम नॉट सेइंग यूज 1 आवर, एनीथिंग इज फाइन. अब 1 आवर में यू कैन क्लियरली सी व्हाट, कि मार्केट बार बार ये लेवल्स पे ना आ रहा है, मतलब एक ये बहुत सॉलिड सपोर्ट है बैंक्स के ऊपर. एट द सेम टाइम अभी मार्केट 35,000 राउंड नंबर के ऊपर चल रहा है, which is showing strength. So हमारा Yes, प्लान क्या होना चाहिए going forward in the market? I'll explain how quickly I make a view. Our plan is quite simple, that as long as the market is above 35,000, मैंने तो शॉर्ट सोचना ही नहीं है. मैं क्यों सोचूं शॉर्ट का? Let the market pressure come, then I will think to short. अगर मार्केट, अब तू सोच, जिस बंदे ने यहाँ पे शॉर्ट भी किया है 35 टू 150-70 लेवल पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, उसको क्या फायदा हुआ है? सोच के देख, उसको क्या फायदा हुआ है? कुछ फायदा नहीं हुआ. He has just probably faced the decay of the options if he was in option, क्योंकि वो एक काउंटर ट्रेंड खेल रहा है. अगर मान ले मार्केट इसके नीचे आ जाती है below 35,000, then confusion will start. क्यों? क्योंकि मार्केट में लोगों ने यहां से सेल किया और लोगों ने यहां से बाय किया. कंफ्यूजन विल स्टार्ट. बट अगर मार्केट वापस ये लेवल तोड़ देती है, which was a crucial support on the chart, जो तूने एक बड़े चार्ट पे आइडेंटिफाई किया था, then you know कि मैंने इस लेवल के नीचे सिर्फ सेल ऑन राइज करना है. मतलब अगर 5 मिनट के ऊपर पुल बैक आता है, अगर 5 मिनट में एक पुल बैक आके रेजिस्टेंस आता है, मैंने वहां माल बेचना है, बट मैंने सपोर्ट बाय नहीं करना. So what I am saying from this entire meeting or the entire message is, have a view कि यार above which level do I want to remain buy on dip, below which level do I want to remain sell on rise, and between which levels do I want to be buy here sell here, buy here sell here. वो लेवल कौन सा है? ये वाला. ये है जो तू काम कर रहा है ना. मैं यहां सपोर्ट बाय करता हूं, रेजिस्टेंस माल बेचता हूं, वो होती है मार्केट साइडवेज. There are 3 markets, up trend, down trend, sideways. जो तू कर रहा है वो है साइडवेज मार्केट, जो ये है, यहां खरीदा या बेचा, यहां खरीदा या बेचा, वो ये है. तो जब मार्केट बैंक निफ्टी यहां पे आएगा, यू कैन बाय हियर सेल हियर, बाय हियर सेल हियर, बट बिलो दिस यू आर सेल ऑन राइज, above this you are buy on dip. Okay. So the most important question every single day is, before you trade, before you plan and before you enter the market and 15, सोच के आओ कि अगर मार्केट यहां पे खुलता है और अगर मार्केट यहां पे होता है, तो मैंने आज बाय ऑन डिप है या सेल ऑन राइज या साइडवेज है. समझ गए? ओके, गॉट इट. तो पूरा व्यू सोच के आना है मार्केट में. मार्केट में कुछ नहीं सोचना. दैट इज व्हाई तू सोच, मैं टेलीग्राम पे एक रात को व्यू बताता हूँ यूट्यूब पे, ये आज मेरा व्यू है. टेलीग्राम पे सिर्फ एक मैसेज डालता हूँ कि जो हमने कल डिस्कस किया था वो हो रहा है. अगर कुछ और हो रहा है, मान ले मार्केट बहुत नीचे खुल गया, बहुत ऊपर खुल गया, देन आई विल कम टेलीग्राम से कि यार थोड़ा व्यू बदल के ये रखो. बट सारा व्यू हम सोच के आते हैं. जैसे हमने कल क्या किया था, हमने प्लान किया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा इट विल गिव अ ट्रेंडिंग मूव, और अगर मार्केट अप खुलेगा इट विल बिकम साइडवेज और वॉलेटाइल. तो व्हाई विल आई गो शॉर्ट ओवर हियर? अगर मार्केट 2 बजे का फॉल दे रहा है, मैं क्यों शॉर्ट करूं? क्योंकि मैं तो कल डिसाइड करके आया हूं मार्केट गैप अप है तो वो वॉलेटाइल रहेगी, तो मैं शॉर्ट क्यों करूंगा? समझ आई? Got it, sir. Yes, sir. Sir, how do you set target, sir? ओके. अच्छा, तेरे और कुछ क्वेश्चन सारे आंसर हो गए कि कुछ कर रहे हैं आंसर? नहीं सर, हो गए पूरे. मतलब मेरे को सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि अभी टारगेट सेट करूं या सिर्फ ट्रेड करते जाओ. देखो, दो अगेन, अगर तो तू मीन रिवर्जन वाला काम करता है, जो तू कह रहा है ना कि मैं मार्केट ऊपर आता है और मैंने बेचना है, एग्जांपल देता हूं कि यार थोड़ा बेसिकली तू ब्रेकआउट काम नहीं कर रहा, तू ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा, तू बस एक छोटा मोटा काम कर रहा है. उस केस के अंदर तेरे को अपना टारगेट लेना पड़ेगा, उसमें ट्रेलिंग वाला पॉइंट नहीं आता. ट्रेलिंग का बेनिफिट तभी है अगर तू एक व्यू बना के मार्केट में आया, राइट, और तेरे को अगर पता है कि फॉर एग्जांपल तेरे को पता है कि यार अबव 35,400 मार्केट काफी बढ़िया परफॉर्म करेगा बैंक निफ्टी, because on the daily chart, if I open the daily chart of bank nifty, you will be able to see a double bottom is being formed in the chart. So as per our technical knowledge, जितनी भी हमें आती है, हम बहुत रिटेल लोग हैं, but still जितनी भी हमें आती है, if the market goes above this, then एक structural bottom बन जाता है and market becomes buy on dip. That is what technical has taught us in the last 100 years.
तो अगर ये हो जाए और अगर तू यहाँ पे लॉन्ग करता है, देन तेरे को और इसको ट्रेल करना है, मतलब ये तू पूरी बायो डिप में है, तो इन सच अ केस यू कैन कीप ऑन ट्रेलिंग, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. बट अगर तू काम कर रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर आता है, मेरे को वहां पे निकल के थोड़ा पुट लेना है, वो थोड़ा सा अलग तरीका है. मैं कहूंगा उस वे के अंदर ट्राई करो कि थोड़ा अपने टारगेट्स को एक्सेप्ट करके निकलते जाया करो. I will give you the best way. देखो, there are many ways to set targets. I mean, pivot points are one that you can use to set targets. You can use many other approaches. Previous highs, previous level resistance levels, जो भी हैं, काफी होते हैं. Previous day high, last week high, काफी options हैं. मैं बट देखो एक चीज बोलूंगा, बिकॉज तेरा कैपिटल कम है, यू आर नॉट अ पर्सन सिटिंग विद 1 लाख. आई एम नॉट सेइंग यू कांट. इट इज बेटर इफ यू हैव मोर कैपिटल इन द मार्केट. बिकॉज अगर, अच्छा बाय द वे, आर यू टेकिंग गुड ट्रेड्स इन द सेंस ओटीएम एटीएम तो नहीं काम कर रहा? No. I am trading ITM. ठीक है ना, पूरा तो ITM ऐसा दिख रहा है देखो सर. बताइए, ठीक है. तो Yeah. मेरा तेरा सजेशन ये रहेगा कि अपने जो टारगेट्स है ना, बिकॉज तेरा Okay. 20,000 कैपिटल अभी है, सो यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर योरसेल्फ. अभी तेरा गोल नहीं है कि मेरे को 20 से 1 लाख जाना है, वो गोल रखना भी मत. मैं नहीं चाहता वो गोल रखे. आई डू नॉट वांट एनी थॉट टू कम. आई एम वेरी ब्लंट. आई एम अ बैड पर्सन बिकॉज आई एम सेइंग दिस टू यू कि डोंट मेक 20,000 or 1 lakh. Because I can tell you this right now, the moment you have that feeling in your mind, it might be great. It's a dream. It's a dream for us कि पूरा capital 5 times करना है. But the moment you get that feeling, you will let your emotions come into control. मैं लास्ट टाइम भी किसी से डिस्कस कर रहा था कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ना, उसको तुम 2 लाख बनाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. अगर तेरे पास 5 लाख है, उसको तू बना ले 10, में फर्क नहीं पड़ेगा. बट 20,000 को 1 मत बनाओ, 20 को 40 बनाओ. ड्रीम छोटे रखो. अगर कैपिटल 20,000 है, तेरे को विजन देखना है. तेरा गोल क्या है अभिषेक, कि तेरे को अपने एसेट्स को बीट करना है. इक्विटी की रिटर्न क्या है, तेरे को उसको बीट करना है. एफडी का रिटर्न क्या है. तेरा गोल ये नहीं है कि पागलों की तरह 20 का 10 लाख बनाना है. वो नहीं करना हमने काम. वो करेंगे 10 लाख का 1 करोड़, वो अलग बात है. 10 लाख का 20 लाख, वो अलग बात है. 1 करोड़ बहुत बड़ा हो गया. 50 का 1 करोड़, वो अलग बात है. 20 का 40, 20 का 50, ये ड्रीम है. रियलिस्टिक ड्रीम लेके चलो. तू अपने आप को एक ड्रीम दे, अपने आप को एक विजन दे. हम बिजनेस कर रहे हैं, गिव योरसेल्फ अ विजन. अगर तेरा विजन कहता है कि मेरे को 100% ग्रो चाहिए इन द नेक्स्ट 6 months, मुझे ग्रो करना है, वो विजन हुआ मतलब कि देखो 20 का 50 बनाना है फॉर एग्जांपल. वो विजन को पीछे लेके आओ कि 50,000 अगर मुझे बनाना है, मान लो 2 महीने छुट्टी है, 10 महीने हो गए, मतलब देखो 30,000 रुपीज बनाने हैं ऑन 20,000 टू ग्रो टू 50,000 in 10 months, which means 3,000 per month, which means around 750 per week. सोचो, which means around 100 रुपए, 150 रुपए पर डे. अगर तू आज 150 रुपीज पर डे बनाता जाएगा, तो तू अपना 20 का कैपिटल 10 महीने, 1 साल के अंदर 50,000 कर सकता है. तो तेरे को, अब मुझे नहीं पता तेरा गोल क्या है, तेरे को अपना गोल देना है. अगर तेरा गोल है कि मुझे 20 का 1 करना है, मेरे पास वो विजन है, मेरे पास वो कैपेबिलिटी है, तो वो 1 लाख पहुंचने के लिए वो क्या करना है, मतलब 80,000 रुपीज इन 10 months, 8,000 रुपीज इन 1 month, 2,000 रुपीज इन 1 week, 500 रुपीज इन 1 day, which is also achievable. अगर तू एक डिसिप्लिन फॉलो करता है, एक कमिटमेंट फॉलो करता है और एक कंसिस्टेंसी फॉलो करता है, हर रोज 500 रुपए कमा, तू अपना कैपिटल 5 times ग्रो कर लेगा. गोल बना के चल, तेरा काम आसान होगा. So answering your question, I forgot it. I would recommend कि तू अपने whatever is the multiple of risk, उतना multiple of target रख. Because you are starting small. If you are keeping, as you said, 1,000 rupee risk, 20 point nifty जो मैं सिखा चुका हूँ, 20 point nifty risk, 25 point nifty risk, keep that as target, and in the money you will achieve the target. So वो तू follow करते हुए plan, there is no problem. एक और चीज तूने follow करनी है, because तेरा भी capital कम है. What you have to follow is that जब तू एक अच्छे विनिंग स्ट्रीक में आ जाएगा, तो तूने बीच में 1-2 दिन ट्रेड नहीं करना, स्पेशली वेडनेसडे एंड थर्सडे छोड़ देना है. मान ले तेरा गोल है कि मुझे 20 से 1 लाख पहुंचना है 1 साल के अंदर, ये तेरा एक गोल है, मतलब तेरे को एवरीडे 500 रुपए कमाना है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे नंबर याद है, 500 रुपए कमाना है. अगर तूने मान ले 2-3 दिन में कमा लिए 5,000 रुपए एक्स्ट्रा, अब नॉर्मल हो गया रिटर्न्स, तब तूने एक दिन ट्रेड नहीं करना, बिकॉज हमने अपनी इमोशनल बैलेंस को वापस लाना है. आवर साइकोलॉजी हैज टू कम बैक. समझ रहे बात को? Yes, sir. ये बात है. Sir, so basically we have to limit our trades ना, 2 या 3 quality trades लेना है सिर्फ. हाँ, क्योंकि हम बड़ा चार्ट देख रहे हैं ना अभिषेक,
हमारे हाँ, ट्रेड तो हैं, क्योंकि हम बड़ा चार्ट देख रहे हैं, जो हमारे ट्रेड है वो लिमिटेड होंगे, हमने लेने मीनिंगफुल ट्रेड है। एंड ट्राई करो ओके एवरी सिंगल डे 1 या 2 ट्रेड, उससे ज्यादा मत लो। जितने ज्यादा ट्रेड्स लोगे ना, उतना जजमेंट बदलता है। द मोर जजमेंट चेंजेस, द मोर लॉसेस विल यू विल डू। ओके ओके सर, गॉट इट। एंड एक चीज मेरा यहाँ से सीखो कि यार, अब जैसे मैंने आज से तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजा था इन द टेलीग्राम ग्रुप, तू सोच मैं कल 300 रुपए के प्रीमियम से आज 460 हो गया, अभी बैठा हूं। मैंने भी तो 25 क्वांटिटी ली है। 25 क्वांटिटी ऑफ 3,300 प्रीमियम इज हाउ मच? 7,000 रुपए। मैंने 7,000 रुपए के ऊपर 7,000 रुपए कमा लिए हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं तेरे को, सोच कैसे मैं भी तो कमा ही रहा हूं। वाई डू आई ट्रेड स्मॉल? मुझे काफी लोग पूछते हैं वाई डू यू रिड्यूस क्वांटिटी? बस कैपिटल नहीं है, कैपिटल बहुत है मेरे पास, बट क्योंकि मेरे को अपना इमोशनल बैलेंस और अपनी एक्सपेक्टेशन को वापस ग्राउंड जीरो पे लाना होता है। मैं ट्रेड करता हूँ 5 लाख 10 लाख, तुमने देखे ही है, बट जब इतना हैवी ट्रेडिंग करता हूँ, प्रॉफिट भी आते हैं 1 लाख, लॉस भी आते हैं 50,000, जरूर आएंगे, लाख रुपए लॉस भी आता है। बट व्हेन आई गो इन अ गुड विनिंग स्ट्रीक, I will reduce myself 15-20 days with minimum bare capital. Ki Devang, can you survive with this? And once I get that stability, yes, you can. I will again increase capital. So fluctuating how much capital you are using is also important to keep that emotional balance. ओके सर, गॉट इट। तो तेरा एक फोकस रखना अभिषेक, लास्ट 1-2 थिंग्स, कि यार अभी जो टाइम है ना तेरा, बड़े कैपिटल देख, इन 1-2 years यू विल हैव अ गुड जॉब, यू विल बी डूइंग वेल, प्रोवाइडिंग फॉर योर फैमिली, तो आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल हैव गुड कैपिटल टू ट्रेड, यू विल बी एबल टू टेक 10 लॉट्स इन द फ्यूचर। बट आई डोंट वांट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर स्टिल स्कैल्पिंग, but I would want at that point of time you capture a trade and go with the flow. And that is only possible if today at these ground root levels you learn how to hold a trade. So focus on one thing now, find an amazing trade. यार एक सपोर्ट आएगा, वहां पे लेना ही लेना है, उसको लंबा खींचना है। फाइंड अ अमेजिंग ट्रेड, होल्ड इट फॉर 10 days 20 days, होल्ड करो उस ट्रेड को, थोड़ा कैपिटल और साइड में रखो टू डू एडजस्टमेंट्स, और उस ट्रेड को कम से कम 100-200 पॉइंट का प्रीमियम दो, खरीदो वहां से, लो उससे। जब तुम एक हैबिट बना लोगे ना टू आइडेंटिफाई ट्रेड्स व्हिच गिव यू बिग मनी, व्हेन यू इंक्रीज कैपिटल एंड यू डू द सेम थिंग हैबिट विद दैट, इमेजिन द मनी यू विल बी अर्निंग। या तो तुम स्कैल्पिंग करते जाओ पूरी लाइफ, या इस स्टाइल में आ जाओ, दोनों सही है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, तेरे को अपना स्टाइल ढूंढना है। गॉट इट सर। और बता। हाँ सर, यू ऑलरेडी आंसर्ड एवरीथिंग, मतलब मेरे बहुत सारे डाउट्स थे, बट यस। एनीथिंग एल्स? एक्चुअली हाँ बताओ प्लीज। नो सर, आई एम जस्ट फीलिंग ओवरवेल्म्ड सर, मतलब एकदम से एकदम बढ़िया लग रहा है। देख यार, अपने आप को ना तूने खुश रखना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मिनट यू आर हैप्पी, मार्केट में यू विल परफॉर्म, बट इफ देयर इज सम ब्लॉक ऑन योर हेड, यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। तो तूने मेक श्योर करना है, इफ यू आर ट्रेडिंग हैवी एंड बिकॉज ऑफ दैट तेरे मन में एक सिर पे ब्लॉक आ रहा है, अपनी क्वांटिटीज कम करो। इफ फॉर सम रीजन in life you are not happy, remove that factor in life so that it doesn't affect your trading or your general business or your general life. ये चीज को याद रखना है। ड्यूरिंग मार्केट हंसते जाओ। अब तू सोच, आज यू सॉ माय टेलीग्राम कमेंट्री टुडे, देख पढ़, सुना तूने मेरा आज? मैंने उसमें आज मैं कैसी बात कर रहा था, तू सुना कर मैं क्या बात करता हूँ, कि यार हम ना टेनिस खेल रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक टेनिस खेल रहा है, वो वॉली पे आ रहा है, वो स्मैश। See, now I am trading. I don't care what ICICI Bank does in tennis or in football or in a war. But when I talk like this, I come in a jolly mood. I become light. You guys become light. अच्छा, ये बात कर रहे हैं. So when you try to, the market is very complex. We have to accept it. But when you break down this entire complex thing into simple things, into simple examples, then you'll be able to succeed. ठीक है? So इन चीजों को अपने मन में रखो और मेरे को टच में रखो, and we will see how things go from there. ठीक है? No sir, I will keep you updated every day sir. Great. From now, मतलब, because from that moment I will be disciplined that I have to update you in every way. ठीक है, perfect अभिषेक, perfect. Thank you so much.